Namaskar, good evening. You're watching the News Hour at 9 and I am Swati Joshi. As RSS turns 100, once a pracharak himself, Prime Minister Narendra Modi today recalled its origin, struggles and contributions to India. To mark the occasion, Prime Minister released a specially designed commemorative postage stamp and a silver coin. The 100 rupee coin has the national emblem on one side and on the other side there is Bharat Mata's image with Swayam Sevaks bowing down to her. The special postal stamp launched has the image of Republic Day celebrations from 1963 when Sangh's Swayam Sevaks marched on the Rajpath. Participation is known to have come at the invitation of the then Prime Minister Jawaharlal Nehru as an acknowledgement of the efforts of RSS volunteers during the 1962 India-China war. PM defined the 100-year journey of RSS as an example of sacrifice, selfless service, nation building and discipline. चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है। संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया, संघ उससे जूझता रहा। प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। In yet another attempt to acknowledge RSS role, the BJP Minority Morcha chief Jamal Siddiqui has written to the president urging that the outfit's founder Hedgewar be awarded nation's highest civilian honor, the Bharat Ratna, to recognize unparalleled contribution of the freedom fighter and to inspire the younger generation with nationalism. आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए समाज को संगठित करने के उद्देश्य से पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर में संघ का प्रारंभ किया, ये सब जानते हैं। Also, students in Delhi government schools will soon study the RSS under a new educational initiative called Rashtriya Niti. The chapters will also cover the participation of RSS in the freedom struggle to give students a broader understanding of India's independence movement. But Congress says it's not education, it's just indoctrination. We all know that RSS was not part of the Quit India movement. They were not part of the Indian National Army with Netaji also. They were with the Britishers, which is the organization which spread hate against Mahatma Gandhi. We all know that history has shown it very clearly. Therefore, this is unfortunate that they are trying to spread the wrong information. Now, Congress's deep-seated antipathy for BJP's ideological fountainhead is neither new nor unknown. Never the one to leave an opportunity to discredit Sangh, Congress launched an all-out offensive to dismiss every single achievement spotlighted by the Prime Minister. आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? It's a blot on Indian democracy that such organization is being rewarded and respected. The organization who is responsible for death of Gandhi ji, which burned the effigy of Dr. Ambedkar, of Nehru ji. The Congress, which has always sort of been interested in just ruling this country and living for a particular family, obviously feels very, hurt about the fact that they don't have the sort of support from the society that RSS provides to Bharatiya Janata Party. The Congress party is reduced to being trolling
trolling also substandard troll. If when the Rahul Gandhi starts speaking the truth, or at least starts speaking 50% of his stuff is the truth, then I shall personally go give him an award. None of these criticisms being made by the opposition seem to be having an impact on the growing influence of RSS. Let's take a look at the visuals on your screens at the moment. This is an RSS event being organized for the first time on the JNU campus, and see the kind of turnout from Gen Z. Perhaps the youth of today can sift through the agenda that Congress wants to propagate. So here are some more facts, direct answers to Congress's pointed criticism. Congress has accused the RSS of not participating in the Quit India movement, but they forgot about the 1942 movement in Chimur, when RSS protested against the arrest of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. 3 RSS members were in fact sentenced to death at that time. One RSS member, Ramdas Rampure, was also shot dead by the British police. As far as Sangh's role in larger freedom struggle is concerned, RSS founder himself was jailed on multiple occasions, and the organization has sheltered many freedom fighters, including Aruna Asaf Ali. And now let's address the charge of Mahatma's blood being on the hands of the RSS, the Swayam Sevaks, and RSS being banned due to its role. 2 investigations were conducted into the assassination, and both absolved the Sangh. Even Sardar Patel wrote to Nehru and said RSS was not involved at all. Nathuram Godse was not even in RSS at the time of the murder. Let's listen into Atal Bihari Vajpayee's fact check on the floor of the House. मुझे आपत्ति है गोडसे का नाम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है, श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए, गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आरएसएस का विरोधी था, गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना कर, और गांधी जी की हत्या की जांच हुई, और 2 बार जांच हुई, और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था। क्या दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं, और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है, तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तब तो हमारे आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है। अगर अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काय की आम सहमति, ब्रॉड कंसेंसस का मतलब क्या है? ब्रॉड कंसेंसस इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो, मगर ईमानदारी पर उंगलियां उठाई। And that brings us to the legitimate question that we are asking tonight. Is Congress's hate for RSS driven by prejudice, not facts? Let's open up the debate. Let's take that question across to our guests. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Tonight we're joined by Guru Prakash, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have Harshvardhan Tripathi with us, senior journalist. Tushar Gupta, political analyst, joins us. Ashwini Kumar Mishra, leader Congress. Vivek Srivastava, political analyst, and Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party. Good evening to all of you. I first want to go across to Ashwini Kumar Mishra. Ashwini Kumar Mishra, there are some rebuttals coming in on the question of where was RSS during the freedom struggle. Why were they absent? Where were they when Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru were jailed, when they were thrown behind the bars? The fact check coming in and the rebuttal coming in from the Bharatiya Janata Party is that, please first answer, why were the Swayam Sevaks invited for the 1963 Republic Day parade? Also talk about the Chimur movement in 1942 when the Swayam Sevaks protested against the arrest of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. स्वाति जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। बचपन में मैं भी एक बार आरएसएस की शाखा में अपने भाई के साथ गया था, एंड आई आस्क्ड माय ब्रदर कि यहाँ तो ये हमको कट्टरपंथ बना रहे हैं, कट्टरपंथ सिखा रहे हैं। दैट इज द इथोस ऑफ आरएसएस। आरएसएस किल्ड द वेरी इथोस ऑफ इंडिया, which is सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, and started radicalizing people's mindset from the very beginning. I've been there, so I have seen it. So I don't understand what are we celebrating this 100 years for. Are we celebrating this 100 years for supporting Britishers? Are we celebrating 100 years for insulting the tricolor? Are we supporting this 100 years for insulting the freedom fighters, or abusing Ambedkar, burning the refugees, burning the constitutions, or motivating the first terrorist of India, Godse? You may say that he was not from RSS, but he was fully motivated by the RSS ideology, and he was one of the members of Vishnudeep Parsad as well. I mean, that whatever that Savarkar had that time. If you look at Hindu Mahasabha. Now, if you look at the RSS history of 100 years, it was banned by Patel ji. It used to write letters to Britishers
and suggesting them how to dismantle the freedom movement. It did not join in civil obedience move of 1930. It did not join in the Quit India movement. In fact, it made the government with Jinnah. And it, along with Savarkar, it was giving the bipartisan theory. It also wanting to implement Manusmriti in place of constitution. So understand what is a history of hundreds of RSS. I think the fundamental problem with the RSS is that they don't want to run this country by the constitution. They want to run this country by the Manusmriti, the ideology which nobody will accept, where women are treated as second class. Then Jawaharlal Nehru, going by that logic, Jawaharlal Nehru and the Congress party is the biggest culprit in allowing this organization to flourish and work for 100 years. अगर ये कट्टरपंथ फैला रहे थे तो जब पहली बार इनको बैन किया गया था, why was the ban lifted within a year? You're the biggest culprit. You allowed this organization that you accuse of spreading hate and कट्टरपंथ to flourish for 100 years. उसी वक्त बैन कर देते, खत्म कर देते RSS. Swati ji, as Gandhi ji said, hate the crime, not the criminal. So we always give opportunity to everyone who can bring to mainstream. And we had given that opportunity to RSS also at that point of time. We allow everyone to participate in the glorification of India, in the prosperity of India, but some institutions failed, and they failed completely in 100 years. I have given the history. There are incidents after that as well. But Ashwini Kumar Mishra, you don't give second, third, fourth chances to a repeat offender. You should not give chances to an organization that you feel is spreading Kattarpanth. You should definitely not give chances to an organization that is radicalizing people. Correct. Isn't this hypocrisy on part of the Congress party to lift the ban? Also, why was Hedgewar thrown behind bars in 1921 and 1931 as well? Why were the Swayam Sevaks sheltering, protecting the freedom fighters? If they had nothing to do with the Quit India movement, nothing to contribute to the freedom struggle, if they were so pro-British and anti-India, क्या कर रहे थे लोग? क्यों freedom fighters को पनाह दे रहे थे? Swati ji, if you read Bunch of Thoughts, you can clearly see the writings of Golwalkar ji. He himself said that our struggle or our idea of RSS was not about the freedom. We wanted to unite Hindus, or rather radicalize the Hindus. So RSS, second head, Golwalkar himself said that they did not want to participate in freedom. The freedom was not their objective, and that was quite evident. Why was he released from jail? No, one second. I am talking, one second, relax. After the assassination of Mahatma Gandhi, why was the ban lifted? Why was Golwalkar released from jail? Swati ji, understand, the judiciary works on the 100% on the evidence. Judiciary cannot predict the thought process or the ideology or the mental state of the person. RSS still has that mental That's very interesting. Where they so want irrespective of whether the organization was absolved or not, the individual was released from the jail. Now you will talk about their thought process. Judiciary ने clean chit दे दी, लेकिन इनका thought process खराब था, इसीलिए आपने ban lift कर दिया. Let me bring in Guru Prakash. Guru Prakash, there's no contribution to show of the RSS in the freedom struggle. आप बच्चों को अब curriculum में पढ़ाना चाहते हैं RSS के बारे में. This is indoctrination. This is not education. So Swati, at the outset, let me make this very clear that we don't need any certificate from any Congress party. ये Congress party हमें प्रमाण पत्र देने वाली कौन होती है? The Congress party leader was saying we gave them an opportunity. Excuse me, आप हमें अवसर देने वाले कौन होते हैं? Today, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, world's largest and world's oldest student union. You have to understand, Bharatiya Mazdoor Sangh, world's country's largest trade union. Today, Bharatiya Janata Party, world's largest political party. Bharatiya Kisan Sangh, Vanvasi Kalyan Ashram, Vidya Bharati, Sanskar Bharati. These are not just mere organizations, sir. These are not just NGO. These are flagship initiative of the Rashtriya Swayamsevak Sangh that touches each and every aspect of 140 crore Indians. That is point number one. Point number two, my friend from the Congress party, and he did not answer your question. Why was the RSS invited to participate in the parade? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया. Indira Gandhi, the same Congress party, the same Mr. Rahul Gandhi, who is never tired of criticizing and
अब्यूजिंग वीर सावरकर को वीर बोलने वाली इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी। अब आप बोलेंगे आपने मौका दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और उसके 100 वर्ष होने पे हम सबको गर्व होता है। एंड टुडे यू लुक एट ईच एंड एवरी ऑपोजिशन पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग? The Rashtriya Swayamsevak Sangh, I gave you a list of organization. Every single space that touches each and every aspect of 140 crore Indians. Emergency के विरोध में. This is the 50th year of emergency, Swati. 50 साल emergency के हुए हैं. And the political party Jansangh, it was institutionally invented by the RSS. Nanaji Deshmukh, who gave a voice to join the protest against emergency, he came from the RSS. So today the Congress party is in a quest. The Congress party is in a hurry to give RSS a certificate. हम प्रमाण पत्र मांगने वाले आपसे कोई नहीं और आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं है। आप कोई नहीं होते प्रमाण पत्र देने वाले। विवेक श्रीवास्तव, वी डोंट वांट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यू, सेज गुरु प्रकाश। आरएसएस को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जी हाँ, हमें हाँ सुन लीजिए, सुनिए गुरु प्रकाश जी, स्वाति सर्टिफिकेट की जरूरत जरूर नहीं है आपको। माफीनामा क्यों लिखा था? माफीनामा क्यों लिखा था कांग्रेस की सरकार को आरएसएस ने, और कहा था कि हम पॉलिटिकल संगठन नहीं है, हम पे से बैन हटाइए। आप दिखाइए। आप नहीं आप सुनिए जरा, यू नो नथिंग, आप दिखाइए। आप पहले सुन लीजिएगा। यहाँ पे चिट्ठी लिखी गई थी, दिखाइए। होम मिनिस्टर को बंद करिए। आप सुनिए जरा, लेट मी कंप्लीट, डोंट हाइड द फैक्ट्स। अरे चिट्ठी दिखाइए। चिट्ठी लिख करके होम मिनिस्टर को, सरदार पटेल को गुरु गोलवलकर ने बोला, अश्योर किया। फॉल्स प्रोपेगेंडा। लेट मी कंप्लीट। तुम्हारा प्रोपेगेंडा तो फॉल्स प्रोपेगेंडा है। बंद करिए अपना फॉल्स प्रोपेगेंडा। सुनो मेरी बात, फॉल्स प्रोपेगेंदा। सुनो मेरी बात को। ये झूठ बोल रहे हो आप। तो फिर आप झूठ मत बोलो। ठीक है, आप झूठ मत बोलो। ठीक है। क्या आरएसएस की तरफ से बहुत हो गया? होल्ड ऑन, लोगों का आरएसएस की तरफ से चलता आ रहा है, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि नहीं? गुरु प्रकाश एक मिनट, अलाउ हिम टू फिनिश हिज आर्गुमेंट, कम बैक। नहीं, ही इज टू स्केयर्ड ना। आरएसएस क्या है? एनजीओ है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एफसीआरए लाइसेंस है, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। क्या है संघ? स्टेटस बताओ यहाँ पे पहले। व्हाट इज द संघ? आरएसएस क्या है? स्टेटस बताओ स्टेटस मेरे को, रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, ट्रस्ट है कि सोसाइटी बताओ, इस साल रिटर्न भरा कि नहीं है बताओ, एफसीआरए का लाइसेंस है बताओ, पैसा कहां से आता है बिल्डिंग बनाने का बताओ। विवेक श्रीवास्तव, वन सेकेंड, नहीं बता सकते। टेल मी समथिंग। अगर आरएसएस कुछ नहीं है, 1965 में, एक मिनट, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री इनवाइटेड गोलवलकर फॉर एन ऑल पार्टी कंसल्टेटिव मीटिंग। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। किस हैसियत से, क्यों? अब आप सुनिए मेरी बात को। जब नाथूराम गोडसे को ऐसा लगा कि ही इज फ्रॉम द आरएसएस, केस चला, उसके बाद आरएसएस को बैन किया गया। गोलवलकर जी का कम्युनिकेशन हुआ उस समय की होम मिनिस्ट्री से, उन्होंने लिखा और कहा वी हैव नो रोल इन दिस, और दूसरा ये भी लिखा हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम एक सांस्कृतिक संगठन हैं, नेशन बिल्डिंग में लगे हुए हैं। उन्होंने कन्विंस किया, तब जाकर के बैन हटा। तो नेशन बिल्डिंग में आप मानते हैं, लेकिन ये झूठ था। 3 बार बैन लगा, 3 बार बैन हटा। क्यों? 1992 में लगा, इसलिए हटा। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, इसलिए क्योंकि बार बार उन्होंने एश्योरेंस दी, बार and the government was so naive. ये संगठन हिंदू सुप्रीमेसी, the government was so naive, Vivek Srivastava, that they kept on lifting the ban in 1965. Once again, अगर कोई स्टैंडिंग ही नहीं है आरएसएस की, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने गोलवलकर को क्यों इनवाइट किया फॉर एन ऑल पार्टी कंसल्टेटिव मीटिंग? व्हाई? किस हैसियत से आरएसएस को आपने वो मंच दिया? और क्यों आप उनके बैन को लिफ्ट करते रहे? देखिए, आपने पहले रिपब्लिक डे परेड का मेंशन किया जवाहरलाल नेहरू के। दैट वाज अ सिटीजंस परेड in which nobody was stopped, anybody could come and participate. It was not an exclusive invitation to the RSS. Okay, one second. BMS के लोग, विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव के लोग पहुंचे तो थे। ये एक मिनट, तो आप ये आर्ग्यूमेंट, आपका ये आर्ग्यूमेंट विवेक श्रीवास्तव that they had nothing to do with the freedom struggle. One second, they sided with the Britishers. आप उनको एंटी इंडिया तक, आप एंटी इंडिया तक, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, इंडिया के विरोध में वो काम कर रहे थे आपके हिसाब से? आप सुनिए, ब्रिटिश, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे तो एंटी इंडिया थे? अब मैं बोलूं? एक मिनट पहले बताइए, हाँ ना मैं बताइए, ब्रिटिशर्स को अगर वो सपोर्ट कर रहे थे तो वो एंटी इंडिया हो गए? एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताइए,
V. Achyutanandan. V. Achyutanandan said. V.S. Achyutanandan said that he wants to donate blood and ration to the Indian soldiers. Yes. Now, M.M. Lawrence. M.M. Lawrence, senior CPM leader, said this was an anti-party activity by V.S. Achyutanandan. That's why he had to face action. Yes. An individual talking about donating blood and ration to the Indian soldiers becomes an anti-party activity. Very good point. Very good तो point. ये लेफ्ट एंटी इंडिया है? जी, अब आप सुन लीजिए, वीएस अच्युतानंदन इसी साल उनका निधन हुआ है, 100 साल की उम्र थी, और कितनी बार वो चीफ मिनिस्टर बने सीपीएम की तरफ से केरला के, इसको जरा समझिए आप। उन्होंने उस वक्त डिसिप्लिन, आप पता ही नहीं है किसी को। एक मिनट, डिसिप्लिन वीएस अच्युतानंदन अगर वो इंडियन सोल्जर्स को ब्लड डोनेट करने की और राशन देने की बात कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ होगा क्या? चीफ मिनिस्टर बनाने का, वो भी 2 बार उनको डिमोट करने का। उस वक्त कौन सा डिमोशन? उस वक्त उनके डिमोशन की बात हुई थी। बाद में चीफ मिनिस्टर बना दिया। एमएम लॉरेंस कह रहे हैं। अरे ये फर्जी कहानी है। एमएम लॉरेंस भी फर्जी है। कहानियां बाई मत करिए। एमएम लॉरेंस भी फर्जी है। हाँ, सुनिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं सुनिए, उन्होंने एक मिनट क्यों तोड़ी थी और बिना परमिशन के कर रहे थे, किसी और को करना था। सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी। हाँ, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। Who did you support in the 1962 war? 1962 में लेफ्ट किस तरफ था? हम इंडिया के साथ थे और आज भी हैं। तो वीएस अच्युतानंदन को क्यों एक्शन फेस करना पड़ा? मैं वही आपको बता रहा हूँ। 1962 की मैं बात कर रही हूँ। अगर गोल नहीं, मैडम सुन तो लो। 1962 में। लेट्स नॉट टॉक लाइक किड्स। We are not talking like kids. You are talking like a kid. एक आदमी को अगर डिमोट किया, वो चीफ मिनिस्टर बना कैसे? When the argument is not in your favor, it becomes childish. आप कह रही हैं एक आदमी को डिमोट करा, मैं कह रहा हूँ उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 1962 की बात कीजिए। उसके बाद एंटी पार्टी एक्टिविटी हो जाएगा अगर कोई इंडियन सोल्जर्स को, अगर हमारी पार्टी, अगर कोई इंडियन सोल्जर्स को ब्लड और राशन डोनेट करने की बात करता है तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी हो जाती है कि नहीं होती है? एंटी पार्टी एक्टिविटी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त एंटी पार्टी एक्टिविटी कहा गया कि नहीं कहा गया? मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब हर बात से पलट जाएंगे विवेक श्रीवास्तव। एमएम लॉरेंस उनके सीनियर नेता कहते हैं कि वो डिसिप्लिन तोड़ रहे थे, एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे। Was somebody else was supposed to do the blood donation camp. He started doing it on his own. That was the only indiscipline. क्या फर्क पड़ता है उससे? अल्टीमेटली वो इंडियन सोल्जर्स को मदद पहुंचाने की बात कर रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वाति, विवेक जी आपके साथ स्टूडियो में है और उनकी आदत खराब है बीच में बोलने की, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनको जरा इससे रोकिएगा, क्योंकि वो बोलेंगे ही बोलेंगे और आप उनके ट्रैप में आ गई। वो तो एक राज्य की सरकार है, कोई पूछ रहा नहीं है। वो तो राहुल कांग्रेस में इनको बड़ी जगह मिली हुई है, तो ये कांग्रेसियों को धकिया के सारे कम्युनिस्ट घुस गए हैं। मूल बात क्या है? आज बात सिर्फ और सिर्फ संघ की होनी चाहिए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस देश की जनता से खारिज हुए हैं। कोई किसी इतिहासकार ने, फर्जी इतिहासकार ने बुक लिखकर नहीं इस्टेब्लिश किया है। किसी ने प्रमाण पत्र देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष तक यहां नहीं पहुंचाया। संघ समाज के हर क्षेत्र में अपने काम से यहां तक पहुंचा है। और देखिए, ये वाली डिबेट स्वाति जी कमाल की है। मैं तो समझ नहीं पाता कि कितनी बेईमानी इस देश के बौद्धिक लोग करेंगे। जिस संस्था का जो संस्थापक है, किसने स्थापना की थी? डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने। जो उसका संस्थापक है वो 2 बार जेल जाता है। एक बार विदर्भ प्रांत के कांग्रेस नेता के तौर पर, हेडगेवार जी, पता नहीं ये भी पता है कि नहीं इन लोगों को, 1920 में। फिर 1930 में सरसंघ चालक जब वो थे तो अपनी कुर्सी छोड़कर वो आदमी जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लेता है और जेल जाता है। अब आप जरा सोचिए, 5 साल जिस संगठन को बनाए हुए थे वो कुर्सी छोड़ दी उसकी। यहां तो लोग सारी जिंदगी एक ही परिवार की गुलामी, एक ही परिवार की चाटुकारिता, उसी में गुलामी में लोगों का जीवन जा रहा है। और क्यों उन्होंने बनाया ये? बनाया क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था कि कांग्रेस क्या उस तरफ जा पाएगी। वो खुद कांग्रेस नेता थे वो। और अगर अभी ध्यान से इन लोगों ने सुना होता, अभी 3 दिन का जो संवाद कार्यक्रम था डॉक्टर मोहन जी का, डॉक्टर मोहन राव भागवत का, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अलग अलग धाराएं चली, कोई सांस्कृतिक तरीके से, कोई राजनीतिक तरीके से, कोई दूसरे तरह का एक्टिविज्म सब करके, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी भूमिका निभाई स्वतंत्रता संग्राम में।
डॉक्टर हेडगेवार उन सभी धाराओं में से निकल कर आए और उनको यह लगा कि अगर सब सत्ता के लिए भागेंगे तो देश को बनाने का काम नहीं होगा। और उनकी बात कितनी सच हुई कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो अंग्रेजी वाला यूनियन ऑफ स्टेट समझ लिया, यूरोप जैसा समझ लिया भारत को। यानी जो जिस देश की हजारों वर्षों की विरासत है उसको नहीं माना, और नहीं माना इसीलिए भगवान श्री राम के मंदिर में आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी नहीं गए। संघ ने ये स्थापित किया है, संघ की आज की जो स्थिति है, और इसीलिए परेशानी। मैं फिर कह रहा हूं, बैन लगाना और बैन हटाना, इन दोनों को जरा समझा जाना चाहिए। बैन लगाना सरकार लगा सकती है, बैन हटाना कैसे होगा? जब आपके पास तथ्य नहीं होंगे, प्रमाण नहीं होंगे कि इस संगठन पर आपने बैन क्यों लगाया, बिल्कुल ये बेईमानी क्यों की, तब ये होता। और फिर मैं कह रहा हूं, आज ये बात करने का नहीं जिस संघ को किसका प्रमाण पत्र चाहिए। संघ को किसी का प्रमाण पत्र अगर चाहिए होता तो 100 वर्ष का इस स्थिति में नहीं होता कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे देश में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल वो सब संघी हैं। अब जो करना है करिए। मूल बात यह है कि क्या सोसाइटी में जाएंगे या इस तरह से तानाशाही करेंगे? नहीं, एक परिवार, गांधी परिवार, उधारी का गांधी परिवार, उसी के पीछे लगे रहेंगे। विवेक सैलस, पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया है क्या कि देखिए एक नैरेटिव है तो बोलना ही है? नहीं, first of all I will say if children are taught the role of RSS in the freedom struggle, I'm sure the whole damn page will be blank because they did nothing. There are few questions that I'm going to ask the BJP spokesperson. That first of all, when India was rejoicing and we were free, why did the RSS oppose the tricolor? That is the first thing. The second thing that they did, they said we don't believe in the Constitution of India. Why did they say that? For 52 years, they did not hoist the flag in their headquarters in Nagpur. Why? What for? What our kids deserve history. They don't deserve propaganda. What is the RSS going to tell the people? That Nathuram Godse, who assassinated the father of the nation, Mahatma Gandhi ji, was a patriot. Are they going to teach the students this? Why did Baba Sahib Bhimrao Ambedkar oppose the RSS and left Hinduism and became a Buddhist? Why? There has to be a reason for that, That is the thing. In 1942, when the Quit India movement was going on in India, the RSS opposed the Quit India movement. Why? What for? They were recruiting, they were encouraging the Indian youth to join the British Army. That is what the RSS has been doing. That page will not be blank if you mention in that page what are you going to write on that? What Sardar Patel told Jawaharlal Nehru, that RSS was not involved at all about the assassination of Mahatma Gandhi. That page will not be blank if you talk about the Chimur movement in that. That page will not be blank if you talk about the participation and march of the RSS members, the Swayam Sevaks during the Republic Day parade in 1963. So if you selectively want to omit and erase their contribution, then the page will be left blank. Tushar Gupta, Vivek Silas says, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, अब क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? What will you teach them about the contribution of RSS in nation building? Can you unmute yourself, Tushar Gupta? Swati, I've heard everyone patiently for the last 25 minutes, so I'll just request everyone allows me to complete my point. Each time the question of RSS comes up, INC plays the same old broken record. Swati, let's be clear. INC wasn't the only organizations fighting against the British Raj. You had the Hindu Mahasabha, Hindustan Socialist Republic Association, Kadar Party, to name a few. Countless groups engaged in armed rebellion because they found the ways of the Congress too moderate. They've read that in history. Many of them were hanged, many of them have been forgotten. But when did the INC attain a copyright to the freedom movement? When did we start believing that INC was the only one fighting the British Raj? And they keep talking about the British Raj and the role of the RSS. Let's be clear. Congress, Jinnah's Muslim League and the outgoing British Raj government, they all brokered a power deal amongst themselves, and that is how we had the bloody partition. They recall Gandhi's death, right? What about the death of those who were killed in the partition? Their death means absolutely nothing. हर बार आप महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे की बात करिए, सही बात है, करिए.
पर जो लोग पार्टीशन में मरे, जो एक पूरा पार्टीशन हुआ था, इस टाइम की पूरी राजनीति हुई थी, उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व थी, तो पार्टीशन में जो मौत हुई उन पर इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। INC says that they won us independence. Well, their leaders, Nehru gave up a part of Ladakh because he said nothing grows there. Indira Gandhi imposed the emergency, and look what Rahul Gandhi is doing. He is going to the West and saying, why aren't you doing anything about the failing democracy in India? You know what, Swati, I'll just conclude with a very simple point. INC hates the RSS because it actually works for a secular India without demonizing Hindus. And that is where the problem is. आज अगर RSS के कुछ लोग हिंदुओं को गाली देने लगे, INC को बहुत अच्छे लगेंगे, पर क्योंकि RSS एक्चुअली सेकुलर इंडिया में बिलीव करते हैं, जो सेकुलर इंडिया हम 1947 से बनाना चाहते थे, कांग्रेस को वो बुरे लगते हैं। नहीं, सबको नहीं बुरे लगते हैं कांग्रेस में। प्रणब मुखर्जी को बुरे नहीं है। प्रणब मुखर्जी गए थे, अश्विनी जी आप हंस रहे थे, उन्होंने क्या कहा वहां पर वो बताना चाहिए। महात्मा गांधी ने डिसिप्लिन की तारीफ की थी, सिंप्लिसिटी की तारीफ की थी। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी वांट्स टू कम इन एंड देन वेरी क्विकली अश्विनी कुमार मिश्रा जी। स्वाति, संघ से कांग्रेसियों को कभी कोई बहुत ऐतराज नहीं था, इसको आप फैक्ट के तौर पर समझिए। इंदिरा गांधी के बाद, विशेष करके तानाशाही के बाद, वरना कांग्रेस के देश भर में मुख्यमंत्री, देश भर में उनके लोगों संघ के काम को मदद करते रहे। यहां तक कि जो वनवासी कल्याण आश्रम संघ का है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री की सहायता से हुई थी। दरअसल ये इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा गया, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की जब बंधुआ हो गई तब सारी गड़बड़ हुई। इस देश में डेमोक्रेसी को, एक पार्टी को कैसे कोई इतना गुलाम हो सकता है भाई? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और एक परिवार से आगे आप जा नहीं पाते। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस नेता थे हेडगेवार जी, कांग्रेस नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये फैक्ट बोलते हुए क्यों परेशान होते हैं? और आज के समय में आप देखिए, सरदार पटेल को याद कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन सरदार पटेल इनके ऑफिस के फोटोज से लेके कैसे सब जगह से गायब हुए सब जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी बिहार का चुनाव गुरु प्रकाश जी बताएंगे कितना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महिमा या कितना उनका बखान करते हैं कांग्रेसी, ये बताएंगे। और आज की अगर बात कर ले तो प्रणब मुखर्जी, तो दरअसल दिक्कत ये हो रही है कि आज तक केवल कुछ लोगों का जिक्र होता रहा हिस्ट्री में, अब दूसरों को थोड़ी जगह मिल रही है तो परेशानी हो रही है। अश्विनी कुमार मिश्रा, रिस्पॉन्स। स्वाति जी, मैं तुषार गुप्ता को सुन रहा था और मैं इनको फिर से बोलूंगा, आप इतिहास पढ़ने की बार बार बात कर रहे हैं, नागपुर का इतिहास मत पढ़िए, देश का इतिहास पढ़िए। आपने हिंदू महासभा की बात की, हिंदू महासभा, आप बताइए ऐसी कौन सी फ्रीडम स्ट्रगल होती है जहां पर फ्रीडम फाइटर को 60 रुपए पेंशन मिलती होंगी, जबकि तब की वहां पर और लोगों की सैलरियां 15 से 20 रुपए हुआ करती थी, उसमें सावरकर को 60 रुपए पेंशन मिलती थी। 19th अधिवेशन इन 1938 इन अहमदाबाद, सावरकर वाज द वन हु गेव द बाईपार्टीशन थ्योरी। हिंदू महासभा की आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की, जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें बनाई और बाईपार्टीशन का रेजोल्यूशन पास किया 1942 में असेंबली में। तो आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा इतिहास पढ़ के आ रहे हैं आप? ये इतिहास, नागपुर का इतिहास पढ़ना बंद करिए, देश का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है ना। एक मिनट, अब जवाब ले लीजिए। रिस्पॉन्ड करना है। अश्वानी जी यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं रेजोल्यूशन पास किया, थ्योरी दी। अरे भैया, 1947 में डील तो आपने बैठ के ब्रोकर करी थी ना अंग्रेजों के साथ और मुस्लिम लीग के जिन्ना के साथ। देश को जलाने का काम, देश को जलाने का काम आप करो। अश्वानी जी, आपको शर्म किस बात की आती है कि कांग्रेस का इतिहास अगर आप खोलेंगे तो बहुत सच सामने आ जाएगा। आपको शर्म किस बात की आती है? आप बोल दीजिए कि 1947 में जो कांग्रेस थी और आज की जो कांग्रेस है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप इस बात से कैसे बात सकते हैं कि जब इस देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने भी उस पूरे नेगोशिएशन में भाग लिया था। अगर हिंदू महासभा और मुस्लिम बंटवारा हुआ, जो हुआ, कांग्रेस भी उस बंटवारे के नेगोशिएशन का हिस्सा थी। इस बात से कब तक भागते रहेंगे आप? हर रोज एक नया इतिहास आप जो पढ़ाने आ जाते हैं, हर रोज एक नया इतिहास पढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेट मी ब्रिंग इन विवेक सेलस। विवेक सेलस, like Harshvardhan Tripathi said that the RSS does not need, or Guru Prakash said that the RSS does not need a certificate from anyone on their patriotism. Even today, when that coin has been commemorated, it does not have the image of Hedgewar or Golwalkar. भारत माता की बात तब भी करते थे, भारत माता की बात अब भी करते हैं। देखिए, जहां तक आरएसएस का बात है तो बिल्कुल ही वो तो बायस्ड एक संगठन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब भारत माता के लिए बायस है। एक मिनट, नहीं सुन तो लीजिए ना, आप टोक क्यों रही हैं? सुनिए ना, जब से आरएसएस बना है मैं बात कर रहा हूं, अगर इतने ही वो लोग सेकुलर होते या सब कुछ सही होता तो आज मुझे बता दीजिए जितने भी सब संचालक बने हैं, एक रज्जू भैया को छोड़ के सारे ब्राह्मण हैं। क्यों है भाई? क्या आरएसएस में और कोई लोग नहीं है?
आप इस तरह, क्योंकि ये चाहते ही हैं, इस तरह की ये मनोभाव फैलाना चाहते हैं। इसी का तो विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या इग्नोरेंस है? कभी कहेंगे महिलाएं नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है इसका हिस्सा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। गुरु प्रकाश प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रकाश तो खुद बिहार से आते हैं। नहीं, स्वाति जी, ये प्रोपोगेंडा काफी लंबे समय से चल रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने देश में किसका शासन था? भारतीय जनता पार्टी का शासन था। आज पहली बार आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठी है, द्रौपदी मुर्मू जी। देश में किसका शासन है? तो मुझे लगता है इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। भाई, संघ का सरसंचालक कोई दलित होना हो, देश का सरसंचालक दलित है, देश का सरसंचालक आदिवासी है, देश का सरसंचालक पिछड़े वर्ग का है। आप लोग क्या एक परिवार, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी। ये देशभक्ति है क्या? ये सेकुलरिज्म है क्या? ये सोशल जस्टिस है क्या? अरे आप लोगों ने अपने पार्टी के अंदर के लोगों को तो अपमानित किया। बाबू जगजीवन राम अपमानित करो, सीताराम केसरी अपमानित करो, कुमारी शैलजा अपमानित करो, और समाजवादी पार्टी इट्स सो रिच फ्रॉम समाजवादी पार्टी टू इवन स्पीक सच अ थिंग। आजम खान साहब भूल गए क्या? बाबा साहेब अंबेडकर की तरफ इशारा करते हुए साथी उन्होंने कहा था ये देश के सबसे बड़े भू माफिया हैं, और आज बाबा साहेब अंबेडकर की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा बड़ा दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा और कुछ हो नहीं सकती। विवेक श्रीवास्तव, the argument is that Sangh spoke about Bharat Mata back then, it speaks about Bharat Mata till date। आज भी वो केवल भारत माता की बात, वो किसी की बात नहीं करते हैं। संघ बेसिकली हिंदू सुप्रीमेसी का एक संगठन है जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और में विश्वास करता है, कास्टिज्म में विश्वास करता है, एक डिवाइडेड इंडिया का विजन है जिसमें मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और सबसे बड़ा एक्यूजेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शब्दों में विश्वास नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता संघ मानता ही नहीं है, कहता है सिर्फ पंथ निरपेक्षता है। इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म ये सब धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म के अंडर आते हैं। बीजेपी के जो माइनॉरिटी सेल के चीफ हैं वो क्यों उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? और आपने क्योंकि कास्ट की बात की, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता पूछिए ना। मोहन भागवत मोहन भागवत ने क्या कहा? सुनिए, मोहन भागवत ने क्या कहा? इन द पास्ट इवन संघ वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन, but sensitivity matters here the most. Caste violence still takes place. These incidents must stop. एक ही सवाल पूछूंगा, एक सवाल सिर्फ, और उसका उत्तर मैं चाहूंगा पंडित हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। पंडित जी बताइए मुझको, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है धर्मनिरपेक्षता, लेकिन संघ कहता है कि सिर्फ सनातन धर्म एक है और कोई धर्म नहीं है। इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, पारसी सब इसके सबसर्विएंट है, ये पंथ है, तो पंथ निरपेक्षता होगी। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? अगर आप इस्लाम को अलग धर्म नहीं मानते, सिखिज्म को अलग धर्म नहीं मानता है संघ अपनी थियोलॉजी में, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, और व्यूअर्स इसको जाकर के पढ़ें, तो क्या ये गलत नहीं है? अब आप बताइए पंडित जी, बोलिए, अब आप इसके क्लैरिफिकेशन दीजिए। बीच में मत बोलिए। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है, आपने कहा तो मैं आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि एक झूठ बार बार बोला जाता है कि संविधान में कोई ऐसा सेकुलरिज्म जैसा शब्द है। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म 42nd अमेंडमेंट के जरिए इंदिरा गांधी ने धर्म निरपेक्ष शब्द यूज किया है। मैं आ रहा हूँ, बोला ही नहीं मैंने सर। पूरा जवाब दूंगा, आपने नाम लेके कहा तो पूरा जवाब दूंगा, आपको ही जवाब दूंगा। तो पहली बात तो देश के लोगों को ध्यान में रहे कि बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ कहा था न सोशलिज्म न सेकुलरिज्म, क्योंकि दूसरी भी सोच हो सकती लोगों की, और असली लोकतंत्र वो है। मैं सोशलिस्ट नहीं हूं तो क्या मुझे रहने का हक नहीं है? क्या विवेक श्रीवास्तव सोशलिस्ट नहीं है तो इनको रहने का हक नहीं है? सबको इस देश की एक खूबसूरती जो सर्वधर्म संभाव, जो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे सनातन और हिंदू धर्म से आता है। अब मूल बात, विवेक भाई कम्युनिस्ट है तो ये सब गड्ढमड कर देते हैं। इस्लाम अलग है, इसको साफ साफ संघ क्या कहता है? इस धरती पर जो धर्म, जो पंथ, जो मजहब पैदा हुए और जो बाहर से आए, दोनों का फर्क है भाई। इसमें कोई दाएं बाएं नहीं जाना। इस्लाम तो क्या है या धर्म? एक अरे पूरी बात डिबेट इस्लाम पंथ या धर्म पर नहीं हो रही है। दूसरी बात, अब एक मिनट हम आप विवेक एक लाइन और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी समझदार व्यक्ति जिसकी बुद्धि विवेक काम करेगी वो धर्म निरपेक्ष हो नहीं सकता भैया। धर्म सापेक्ष होगा, अधर्मी नहीं होगा। आप फंस गए, यानी कि संघ धर्म निरपेक्षता नहीं मानता, इस्लाम को पंथ मानता है, धर्म नहीं मानता, रिलीजन को पंथ मानता है, धर्म नहीं मानता। इसीलिए
कनेक्ट करते हैं, ये किसी भी धर्म, रिलीजन, मजहब के साथ नहीं है। हाँ। इनका कम्युनिस्टों का मेन यही है। अब कम्युनिस्टों मैं तो वन सेकेंड बात कर रहा हूँ साहब। वन सेकेंड, 1 मिनट, हम आपकी बात माने या मोहन भागवत की बात माने, क्योंकि आप ये एंटी मुस्लिम नैरेटिव आरएसएस को लेकर के जो बार बार आप फैलाते, मोहन भागवत सेज दैट एवरीबडी हूज टॉकिंग अबाउट and trying to create this bogey about RSS in the minds of Muslims are enemies of our society. RSS had never been anti-Muslim, nor is it anti-Muslim, nor shall it be anti-Muslim. Our talks with Muslim intellectuals shall continue. देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाने से मुसलमान आपका नहीं हो गया। सच्चाई ये है, द ट्रूथ इज कि 90% मुसलमान इस मुल्क में आरएसएस और बीजेपी को अपना नहीं मानता, बीजेपी उनको अपना नहीं मानती है। वो अपना वो कहे कि हम नहीं है एंटी मुस्लिम, लेकिन आप उनको बनाने में लगे हुए हैं। मोहन भागवत कोई बंद कमरे में तो ये बात नहीं करते, वो कोई बंद कमरे में ये बात नहीं करते, वो खुल के पब्लिक मंच से ये बात कहते हैं कि देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस बोगी। मुसलमान कैंडिडेट को तो कोई मोहन, तो आरएसएस के जो चीफ है उनको मत सुनिए, आप उनको मत मानिए, आप विवेक श्रीवास्तव को सुनिए, विवेक श्रीवास्तव आप नए स्पोक्स पर्सन बनना चाह रहे हैं क्या आरएसएस? तो फिर मानिए मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है उनकी बात, ठीक है, उनकी बात मत मानिए, विवेक श्रीवास्तव की बात मानिए। बट यू नो द व्यूअर्स आर वाचिंग द डिबेट, इज दिस इंडोक्ट्रिनेशन? Is this, demolishing institutions? Is this saffronization of education or giving an organization its due credit? Let the viewers decide. And this is what some of them have to say while they're watching this debate. G. Subramaniam says, INC is equal to Islamic National Congress run by Naxalites. Nitin Tyagi says, Congress's actions seem very sinister. Let's also take a look at how people have voted. The question was, Congress's hate for RSS, is it driven by prejudice and not facts? And 83% people have said yes, while 12% have voted no, and 5% people are not able to make their minds up. They, at the moment, have said, we can't say. With that, I'm wrapping up debate number 1. Tushar Gupta will continue to be with us. I'm thanking all the other guests.